Staffing, we have to start with the next chapter. Staffing function is the third function of management which is concerned with, पहले आपने planning में पढ़ा था what is to be done, organizing function was concerned with how it is to be done, and the third function of management signifies by whom it is to be done. ठीक है? In simple word, staffing means finding the right people for the right job. आपने क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया प्लानिंग में, उस काम को करने के लिए आपने पूरा वो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार कर लिया कि कितने लोग चाहिए, क्या और कितनी पोस्ट के चाहिए, हर एक के अंडर में कितने लोग काम करेंगे, कितने डिपार्टमेंट होंगे, दैट यू ऑल हैव डिसाइडेड अंडर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. Now you have to man those positions. That means you have to fill that positions. You have to decide who will be the person who will be performing the function of production manager, who will be the person who will be performing working as assistant production manager, who will be the workers, who will be the computer analyst. Now you have to man the positions. Okay? That means you have to obtain a satisfactory workforce for your organization. So staffing function is the filling the vacant position in the organization and keeping them filled. आपको सिर्फ पोजीशन को फिल नहीं करना है, बल्कि आपको उनको फिल हमेशा रखना भी है. दैट मीन्स यू हैव टू मिनिमाइज द टर्नओवर आल्सो. यू हैव टू कीप देम सैटिस्फाइड एज वेल. ठीक है? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल्स हुए, मशीन्स हुए, इक्विपमेंट्स हुए, दे आर यूजलेस if you have nobody to operate them. ठीक है? So you need a staff to. You have made plans, you have made how to work out with those plans, but you don't have anybody to implement those plans. तो वो plan किसी भी काम का नहीं है. ठीक है? तो for each organization should have a skillful and competent employee. अब जैसे मैंने आपको बताया कि staffing का मतलब क्या है, it is concerned with hiring of the candidates. ठीक है? आपने उनको hire करना है. कैसे hire करोगे? You will evaluate their skills. ठीक है? आप उनकी फिर नॉलेज को जज करोगे, फिर उनको उनके स्किल के हिसाब से उनका काम दोगे. ठीक है? मतलब मैंने आपको इसमें बताया था ना, प्रिंसिपल में भी बताया था कि जब आप सिलेक्शन प्रोसेस करते हो, सिलेक्शन प्रोसेस किसमें आता है? स्टाफिंग में आता है. जब आप एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन के समय ही हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वेदर द एम्प्लॉय इज फिट फॉर द जॉब और नॉट. फिट फॉर द जॉब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे वो काम करना आता है या नहीं, उसका मतलब ये है कि वो काम उसके इंटरेस्ट का भी है या नहीं. तो फॉर दैट यू नीड टू इवैल्यूएट हिज स्किल्स, एंड यू इवैल्यूएट द स्किल्स विद द हेल्प ऑफ सो मेनी टेस्ट. वी विल डिस्कस दिस दोस टेस्ट इन डिटेल्स लेटर ऑन इन दिस चैप्टर. ठीक है? बट स्टाफिंग का मतलब आपको सबको समझ में आ गया. यू हैव स्टाफिंग इज कंसर्न विद human element of management. Manning the positions decided in organization structure is called staffing. ठीक है? It's a very important function of management. बहुत ही important function है, क्योंकि if the right kind of employees are not available, अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, अपने ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे टारगेट सेट किए थे, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डिसाइड किया था, but if the right kind of employees are not available, it will lead to wastage of all the efforts. जितनी भी आपने efforts और energy प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में लगाई है, तो अगर आपने एम्प्लॉय सिलेक्ट करने में कुछ गड़बड़ कर दी तो आपकी वो सारी एफर्ट, सारी एनर्जी विल लीड टू अ कंप्लीट वेस्ट. द एंटरप्राइज विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स टारगेट्स इफ द राइट पीपल are not selected. तभी तो कहते हैं the right people can help to take the business on the top and the wrong people can break the business entirely. So human resource is considered to be the most important assets of the company. इसीलिए इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि these are the assets which every day walks out of the company every evening and again walks in the company. So we have to make sure कि जितने भी ये assets आपकी कंपनी से वॉक कर रहे हैं इवनिंग को आउट, those who are walking out of your company in the evening, you must ensure that they should walk in the next morning. All of them should walk in the next morning. इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो सारे
आपका ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट एसेट है जो रोज शाम को आपकी कंपनी से बाहर जाता है और यू हैव टू मेक श्योर कि अगली सुबह वो सारे के सारे एसेट्स लौट कर आए. दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, क्योंकि वर्कफोर्स सेटिस्फाइड होगी, कॉम्पिटेंट होगी, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर तक ले जा पाए. ठीक है. ओके, सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. पहला इसका इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का कि इट फिल्स द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. जितनी भी वेकेंट पोजीशंस है, हमें वाई स्टाफिंग फंक्शन रिक्वायर्ड. इट इज रिक्वायर्ड टू फिल द वेरियस जॉब पोजीशंस. कोई भी जॉब पोजीशन विल बी ऑफ नो यूज अनलेस एंड अनटिल दे आर ऑक्यूपाइड बाय कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज. तो स्टाफिंग वो फंक्शन है which helps in obtaining the competent personnel for the various jobs. ठीक है. आपके स्कूल प्रिंसिपल ने डिपार्टमेंट्स तो बना दिए कि ये साइंस डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये आर्ट्स डिपार्टमेंट है, लेकिन वेदर शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है. ठीक है. तो इसका मतलब वो सारी क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन बेकार हो जाएगी if it is not manned properly. ठीक है. तो स्टाफिंग इज द फंक्शन which helps to obtain the competent personnel for the organization. Okay. Now the second function is it ensures the higher performance. Higher performance. Staffing ensures higher performance by putting the right person on the right job. Performance high कब होगी? स्टाफ जब आपका जो मैनिंग जो आपने किया है वो प्रॉपर है. अगर आपने राइट जॉब का राइट पर्सन का सिलेक्शन नहीं किया, सिर्फ भर लेना ही काम स्टाफिंग नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज को भर लिया. वेकेंट पोजीशंस को भर लेना स्टाफिंग नहीं है. वेकेंट पोजीशन को राइट पर्सन के साथ फिल करना इज कॉल्ड स्टाफिंग. आपने रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी यू वोंट बी एबल टू एंश्योर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस. अगर आप हाई परफॉर्मेंस इंश्योर करना चाहते हैं तो यू हैव टू पुट द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब. पर्सन राइट हो सकता है, जॉब रॉन्ग हो सकती है. इसका मतलब जानते हैं कि आपने कॉम्पिटेंट पर्सन तो अपॉइंट किया है लेकिन वो जॉब उसके इंटरेस्ट की नहीं है. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स you should appoint the person who's competent to perform that job as well as the job is also of his interest. ठीक है. तो इसलिए आपको you have to be very careful while deciding while finalizing your workforce. Now the third point which enhances the importance of staffing function is it ensures the continuous survival and growth of the organization. आपको ये पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करती है? अपने एम्प्लॉइज की एफर्ट्स की वजह से. कोई भी ओनर अपने अकेले के एफर्ट्स से ऑर्गेनाइजेशन को चला या बढ़ा नहीं सकता. उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपको एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स की जरूरत है. सो एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज विद द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज ओनली. By when you appoint competent and efficient persons, you ensures its continuous survival and growth. ठीक है. अगला है हमारा importance जो है स्टाफिंग की. It ensures the optimum utilization of human resources. भाई अगर आपने सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया तो उसको वो काम करना आता ही नहीं जिस जॉब के लिए आपने उसे सिलेक्ट किया है. तो it will result in wastage of materials, wear and tear of machinery, wastage of time, bad quality of output. ठीक है. आपका पैसा वेस्ट होगा. अगर आप अपने रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं, सो प्रॉपर स्टाफिंग enables the organization to acquire quantity as well as quality of employees. As a result, it enhances the optimum utilization of not only human resources but all the other resources also. It prevents disruption of work, wear and tear of machinery. ठीक है. और वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज आपने सेलेक्ट किए तो किसी भी तरह की वेस्टेज आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इट, जब आप सही व्यक्ति का चुनाव करते हो तो इट इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कफोर्स. ठीक है. जब आपने while making the selection process, ये लास्ट स्टेप है, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस का. जब आप वर्कफोर्स को अपॉइंट कर रहे हो, आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपकी असेसमेंट बहुत ही ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है.
you have to objectively assess the interest and competency of the employees. और जब आपने उनको एक बार select कर लिया, तो you should give them fair rewards. You should keep them motivating. ठीक है, इससे क्या होगा, आपको उनको अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर देना होगा, इससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा. और जब कभी भी एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल बढ़ता है, इट ऑलवेज लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस, इट ऑलवेज लीड्स टू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्टाफ कॉम्पिटेंट तो है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसका मोरल डाउन है, वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, अपने मैनेजमेंट से खुश नहीं है, तो कभी भी वो अपनी ऑप्टिमम आउटपुट नहीं दे पाएगा. तो अच्छा स्टाफ अपॉइंट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है. You have to keep the staff motivated and you have to boost up the morale of the employees continuously. Then only it will lead to the growth of the organization. So these are the points which are very important for staffing function of an employee. So staffing is a very important, indispensable function of management. So in the absence of it, organization will not be able to achieve its targets. All your plans and all your organizing will go waste. It will be an effortless activity. It will be a wastage of effort and energy if you are not appointing proper staff to implement those plans and to fill the positions created under organizing. Or Kath, stop the recording. I'll discuss